Hello students, our team is back with lecture number 3 of unit 2, which is ecosystem and structure and function. So today we will be talking about ecological pyramid as promised in the last class, right? So we will talk today about the ecological pyramid, which is just a structural representation जिनको हिंदी में आप पारिस्थितिकी pyramid भी कहते हैं, right? So it's nothing, it's just the graphical representation of trophic structure. ग्राफ पे एक दिखाएंगे हम ट्रॉफिक स्ट्रक्चर्स को across the different trophic level and a function of an ecosystem starting with producers. सबसे पहले जो बॉटम मोस्ट होंगे प्रोड्यूसर होंगे एट द बेस एंड सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल्स फॉर्मिंग इट्स एपेक्स is known as ecological pyramid. So this is basic definition. पारिस्थितिकी pyramid भी आप इनको कहते हैं. Basically, ecological pyramids are of three types: pyramid of number, pyramid of biomass, pyramid of energy. So there are three types of ecological pyramids. First is pyramid of number, where number of organisms at each ecosystem is represented, right? Then second we have pyramid of biomass, where biomass of each of the organisms. Then third we have pyramid of energy. Pyramid of energy. So we will third talk about the pyramid of energy, right? So these three we will talk about detail and they are quite important. So let's first talk about pyramid of number. So it basically represents the number of individuals organism at each trophic level, and we may have upright or inverted, that depends. So always keep in mind such kind of shape is called as upright. This is upright, जिसको आप बोलते हैं एकदम बिल्कुल खड़ा, and this is inverted. Okay, so keep these shape in mind while studying the pyramid for simplification. That is upright and inverted. Okay, so let's talk about these things. Yeah, so if we talk about, let's first talk about the pyramid of numbers, right? So in which we will be talking about three type of examples. One is the pyramid of number in grassland, pyramid of number in forest, and pyramid of number in parasitic food chain, right? Parasite जिसको आप परजीवी बोलते हैं, right? So these three examples we will see with the help of the pictures. So let's talk about first, which is pyramid of numbers in grassland. Examples के help से समझने में easy रहेगा. So pyramid of number in grassland, let's talk about that. So this is the example. You can see it's a very simple example when we talk about the pyramid of numbers in grassland. And pyramid of number of grassland, when you talk about such kind of pyramid, so you can see at the bottom most we have producer. सबसे नीचे जो होंगे, ये ग्रासलैंड वाला एग्जांपल मैंने आपको दिया है जो पिरामिड ऑफ नंबर का है, ठीक है जी. पहले वाला जो ए हम कर रहे हैं यहाँ पे, ए, ठीक है, pyramid of number in grassland. So you can see the bottom most is producers whose number is quite high, right? So grasses होंगी यहाँ पे. ग्रासेस के बाद क्या होगा? हर्बीवोर, शाकाहारी, जैसे इंसेक्ट है जो ग्रास को खाएगा. देन वी विल बी हैविंग कार्निवोर्स, उनके नंबर कुछ और कम होंगे, जैसे फ्रॉग्स हैं या बर्ड्स हैं, ये कार्निवोर में आएंगे आपके. उसके ऊपर हॉक या बर्ड्स होंगे, टॉप कार्निवोर में आएंगे. तो इसको अगर आप मैं ज्वाइन करूं तो इस तरह का शेप बनेगा. सो दिस विल बी अपराइट. ये एग्जांपल हम देख रहे हैं. सो इट इज, दिस इज द नंबर, दिस इज a very simple example of the pyramid of number in a forest ecosystem, right? Sorry, grassland ecosystem, not forest. So grassland में जो है आपका अपराइट होगा. आप देख भी सकते हैं इसको, अगर हम ज्वाइन करते हैं इस तरह से तो ये आपका अपराइट शेप ले लेता है. सो पिरामिड ऑफ नंबर इन ग्रासलैंड इज अपराइट, ठीक है. सेकंड एग्जांपल हम करेंगे पिरामिड ऑफ नंबर, राइट. सो पिरामिड ऑफ नंबर, जस्ट अ मिनट. पिरामिड ऑफ, तो यहाँ पे इसको एक्सप्लेन भी किया गया, आप देख सकते हैं जो मैंने अभी आपको बताया, दैट अ ग्रासलैंड इकोसिस्टम एंड अ पॉन्ड इकोसिस्टम, दोनों को इकोसिस्टम शो एन अपराइट पिरामिड ऑफ नंबर. द प्रोड्यूसर्स in the grassland are grasses, other in pond are phytoplankton,
which are small in size and large in number. तो numbers उनका ज़्यादा होता है producers का. So the producers form the broad base. An herbivore in the grassland are insect, while the tertiary carnivores are hawks or the bird, gradually less and less number, and hence the pyramid apex become gradually narrow, forming an upright pyramid. So these are the upright pyramid, the pyramid of numbers in grassland and pond. Similarly, in the case with the herbivore and carnivore, a top carnivore, the pond which decrease the number at higher trophic level. So ये pyramid of number का जो पहला example था grassland वाला, वो हमने discuss किया. Now we will be discussing about the forest ecosystem, that pyramid of number in a forest ecosystem, right? तो ये हम देखेंगे कि pyramid of number जो होता है फॉरेस्ट बॉस इकोसिस्टम में, वो किस तरह का होता है. तो इसको हम यहाँ पे पहले समझ लेते हैं सो दैट थोड़ी क्लैरिटी ज्यादा है. सो इन फॉरेस्ट इकोसिस्टम बिग ट्री आर द प्रोड्यूसर्स व्हिच आर लेस इन नंबर. बड़े बड़े पेड़ तो कम ही होंगे. एंड हेंस फ्रॉम द नैरो बेस, छोटा बेस होगा. लार्ज नंबर ऑफ हर्बीवोर्स होंगे उसके ऊपर, जैसे बर्ड्स हुई, चिड़िया वगैरह, इंसेक्ट हुए, कीड़े मकोड़े, इन सेवरल स्पीशीज ऑफ एनिमल्स व्हिच विल फीड अपॉन द ट्री. वो ट्री के ऊपर निर्भर है. लीव्स पे भी फीड कर सकते हैं, फ्रूट पे, फ्लावर पे, बाग पे, एटसेट्रा, कहीं भी. ठीक है. सो फ्रॉम अ मच ब्रॉडर मिडिल लेवल, थोड़ा सा मिडिल लेवल बड़ा हो जाएगा. और सेकेंडरी कंज्यूमर लाइक फॉक्स, स्नेक, लिजर्ड एटसेट्रा लेस इन नंबर देन herbivore by the top carnivore like lion and tiger are still smaller in number. तो ये तो कम ही होंगे संख्या में, numbers में. So the pyramid is narrow on both the sides and broader in the middle. So यहाँ पे हम देख सकते हैं ये narrow रहेगा दोनों साइड से. जो pyramid of forest based ecosystem है, राइट, ये आपका सेकंड वाला जो है. तो ट्री है, ट्री तो सिंगल ट्री होगा, एक ट्री मैंने मान लिया, या क्वांटिटी में जो कम है, विच इज अ प्रोड्यूसर्स. एंड हर्बीवोर की बारी आएगी, हर्बीवोर इससे कुछ ज्यादा होंगे, विच विल बी डिपेंडेंट ऑन ट्री, राइट, जैसे इंसेक्ट हुए या बर्ड्स हुए. कार्निवोर उससे थोड़े और कम होंगे, जो मांसाहारी हैं आपके, जैसे स्नेक हो गया, फॉक्स हो गई, लिजर्ड हो गई. देन टॉप कार्निवोर, सबसे ऊपर वाला कार्निवोर हो गया, जैसे लायन एंड टाइगर, दे विल आल्सो बी लेस. तो इस तरह का कुछ कुछ शेप बन रहा है, देख सकते हैं आप. तो यहाँ से ये जाएगा इस तरह का, और फिर ऐसे. तो ये वाला एक तरह का शेप बन रहा है आपका, राइट. सो दिस इज अबाउट द फॉरेस्ट बेस इकोसिस्टम, राइट. तो इसका जो हर्बीवोर वाला जो एरिया है वो बड़ा है देन कार्निवोर, और टॉप कार्निवोर कम है, राइट. तो इसको हम देख सकते हैं, ये एक एग्जांपल हुआ. देन थर्ड example is a very good example, which is the parasitic food chain, जिसको आप परजीवी बोलते हैं, which depends upon the body of other to derive the food. Parasite और host भी आपने पढ़ा होगा, right. So now we will see the parasitic based ecosystem, which is like parasitic food chain. जो जैसे मान लीजिए, let us suppose एक tree है, which is a producer, जो producer है आपका, प्राथमिक उत्पादक जिसको आप बोलते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स. देन वी हैव हर्बीवोर, शाकाहारी, बर्ड आ गए इस ट्री के ऊपर. फिर हमारे ऊपर बहुत सारे पैरासाइट आ गए, परजीवी आ गए, जैसे लाइस, जूं जो होती है. फिर बग्स जो एनिमल्स की बॉडी पे होते हैं. उसके बाद एक ऊपर हाइपर पैरासाइट, उसके ऊपर भी एक परजीवी, जैसे फ्लीज, माइक्रोब्स, ये सब हो गए. तो इफ आई विल सी दिस इन शेप, तो ये भी मेरा ऑलमोस्ट इन्वर्टेड है. तो ये वाला जो पिरामिड है दैट इज ऑल्सो इन्वर्टेड, ठीक है जी. तो ये इन्वर्टेड हो गया मेरा पैरासिटिक फूड चेन. इसको भी ध्यान रखिएगा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है ये कि द एग्जांपल ऑफ पिरामिड ऑफ नंबर व्हिच इज इन्वर्टेड. सो पैरासिटिक फूड चेन, सिंगल ट्री इकोसिस्टम जो आपका होगा, सिंगल ट्री इकोसिस्टम, पैरासिटिक फूड चेन. अब इसको एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं थोड़ा सा, पैरासिटिक फूड चेन में हाउ इट गोज इन. सो पैरासिटिक फूड चेन शोज एन इन्वर्टेड पिरामिड. दिस इज इंपॉर्टेंट. शेप कैसा होता है? द प्रोड्यूसर्स लाइक अ बिग ट्री एज वी शो. फ्रूट ईटिंग बर्ड्स होते हैं उसके ऊपर बहुत सारे, राइट. देन आगे आप आएंगे तो वहां पे आपको उसमें हर्बीवोर मिलेंगे, विच आर लार्ज इन नंबर, कुछ ज्यादा होंगे उससे. मच हायर नंबर ऑफ लाइस एंड बग्स उसके ऊपर होंगे हर्बीवोर के. ग्रो एज पैरासाइट ऑन दीज बर्ड्स व्हाइल स्टिल ग्रेटर इन नंबर. एंड इनके ऊपर भी हाइपर पैरासाइट होंगे लाइक बग्स, फ्लीज एंड माइक्रोब्स व्हिच फीड अपॉन देम एंड thus making the pyramid inverted. ये मैंने आपको एग्जांपल दे दिया. pyramid of number is over from our side. Now let's talk about pyramid of biomass. ये काफी अच्छा है. इसमें हम किस चीज की बात करेंगे? इसमें हम क्या पैरामीटर लेके चलेंगे? इसमें हम
उस बॉडी का बायोमास लेके चलेंगे जो हमारा पार्ट है इकोसिस्टम का या फूड चेन का या फूड वेब का। तो पिरामिड ऑफ बायोमास, सेकंड टाइप ऑफ पिरामिड आर पिरामिड ऑफ बायोमास। तो जब पिरामिड ऑफ बायोमास में आप बात करेंगे तो हम ड्राई मैटर की बात करते हैं यहाँ पे, और जब हम एक्सप्रेस करते हैं इसको, जो आप एक्सप्रेस करने की इस पे बात ढूंढते हैं कि भाई कैसे हम इसको एक्सप्रेस करें, जो हम ऑर्गेनिज्म लेके चल रहे हैं इसमें या फॉरेस्ट लेके चल रहे हैं, जो भी चीज लेके चलेंगे इस पिरामिड के अंदर, तो उसको एक्सप्रेस करने का मेरे पास कोई एक पैरामीटर होना चाहिए। तो पिरामिड ऑफ, जैसे पिरामिड ऑफ बायोमास है तो इसमें मैं ड्राई वेट पर यूनिट एरिया, इसमें मैं क्या एक्सप्रेस करता हूँ, ड्राई वेट पर यूनिट एरिया, ये मेरी यूनिट रहेगी इसमें, ड्राई वेट पर यूनिट एरिया। ठीक है, नॉर्मली तो ये अपराइट रहता है, लेकिन कुछ कुछ इसमें एक्सेप्शन है जो हम डिस्कस करेंगे। तो नॉर्मली इट इज अपराइट, जनरली अपराइट मिलेगा आपको, लेकिन सम एक्सेप्शन आर देयर सच एज इन्वर्टेड इन डीप वाटर बॉडीज। डीप वाटर बॉडीज के केस में ये इन्वर्टेड होगा, ये हम देखेंगे अभी कैसे कैसे है। सो इट हैज बीन बेस्ड अपॉन द टोटल बायोमास। It is based upon the biomass or dry matter at each trophic level in the food chain. The pyramid of biomass can also be upright or inverted. यहाँ पे भी exception है, इसीलिए मैंने बोला inverted भी है. Show pyramids of biomass in a forest and aquatic ecosystem. The pyramid of biomass in a forest is upright. फॉरेस्ट में तो हमेशा आपको अपराइट मिलेगा, उस एग्जांपल को हम करेंगे जो कि एग्जांपल नंबर आपका ए है, ग्रासलैंड वाला। ठीक है, पिरामिड ऑफ बायोमास, ग्रासलैंड वाला एग्जांपल हम करेंगे। इन कंट्रास्ट टू इट्स पिरामिड ऑफ नंबर, so this is because the producer's trees accumulate a huge biomass while the consumer total biomass feeding on them decline at higher trophic level, resulting in broad base of the narrow rung. इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं कि कैसे ये कम है। फॉर एग्जांपल, सो पहला जो एग्जांपल है, जो फर्स्ट एग्जांपल इसमें हमने लिया, जो पिरामिड ऑफ बायोमास है। ठीक है जी, तो पिरामिड ऑफ बायोमास की जब बात करेंगे हम, ठीक है, तो इसमें क्या है, लेट अस सपोज मैं पिरामिड ऑफ बायोमास का एग्जांपल ले रहा हूँ, पहले ग्रासलैंड का, जो घास का मैदान है उसमें मैं देख रहा हूँ किस तरह का पिरामिड बनेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले प्रोड्यूसर्स है, प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी प्रोड्यूसर जो है आपके ऑटोट्रॉप्स हैं, ग्रास और हर्ब्स हैं उसके अंदर सारे के सारे, या प्राथमिक उत्पादक जिसको आप बोलते हैं, सबसे पहले जो खाना बनाएगा विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। उसके ऊपर कुछ हर्बीवोर है, कुछ शाकाहारी, स्क्विरल है, गिलहरी हुई, रैबिट हुआ, खरगोश, इंसेक्ट हुए, और उसके ऊपर कुछ कार्निवोर्स है जिनके जो बायोमास है वो कम है, स्नेक, फ्रॉग, बर्ड्स। तो आप देखेंगे प्रोड्यूसर जो ग्रास है या हर्ब्स है उनका मास तो ज्यादा है ना, और फिर कम वाले का आएगा स्क्विरल और रैबिट का मास, फिर स्नेक और फ्रॉग और बर्ड्स का मास उससे कम है। तो इफ आई विल ज्वाइन इट, सो दिस इज बेसिकली अपराइट। ये एक तरह से अपराइट है, जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम है मेरा या फिर ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, ये अपराइट टाइप का है पिरामिड ऑफ बायोमास। ठीक है, अब हम पॉन्ड बेस इकोसिस्टम का देखते हैं, डीप वाटर बॉडी का, जहां पे एक इस तरह की इन्वर्टेड शेप लेता है। क्यों? जो मेरे फाइटोप्लैंक्टन होंगे, जो प्लांट्स में, जो मेरी वाटर बॉडी में या पॉन्ड में, लेक में, जो प्लांट्स फाइटोप्लैंक्टन्स होंगे, ठीक है, जो मेरे लिए फोटोसिंथेसिस करेंगे, प्राइमरी प्रोड्यूसर होंगे, उनका नंबर कम होगा बायोमास में, मतलब वेट उनका कम होगा इन टोटल। उसके ऊपर कुछ हर्बीवोर होंगे जैसे इंसेक्ट हुए, उनका वेट थोड़ा सा उससे ज्यादा होगा, और छोटी फिश होगी उसके ऊपर, वो जो उसे खाएगी, कार्निवोर जो होगी, मांसाहारी, उसका वेट थोड़ा और ज्यादा होगा। फिर उसके ऊपर टर्शरी कार्निवोर होंगे जो बिग फिश होगी, उसका वेट थोड़ा और ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पिरामिड ऑफ बायोमास की, तो इसका तो जो यूनिट है एक्सप्रेशन का वो ड्राई वेट पर यूनिट एरिया है, तो वो बढ़ता चला जाएगा। और इसको अगर मैं इस तरह से अब देखूंगा तो ये आपको इन्वर्टेड शेप दिखाई देगी ऐसे करके, सो दे सीम्स टू बी इन्वर्टेड। सो दैट्स व्हाई ये जो मेरा पिरामिड ऑफ बायोमास है पॉन्ड बेस इकोसिस्टम में, ये आपका इन्वर्टेड रहता है, ये ध्यान रखिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम्पल के तौर पे। दिस इज जनरली इन्वर्टेड। आगे देखते हैं इसको, थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि कैसे ये है। So when you talk about the pond ecosystem shows an inverted pyramid of biomass, जैसा कि मैंने आपको समझाया, the total biomass of producer, जो ये producer है यहाँ पे phytoplanktons है, इनका मास is less as compared to herbivore, zooplankton और insect, इनसे तो कम ही होगा इसका मास, right? Then carnivore, small fish का उससे ज्यादा होगा, and tertiary carnivore, big fish, thus the pyramid takes an inverted shape. ये काफी important point है, जो पिरामिड का शेप है वो इन्वर्टेड रहेगा पॉन्ड बेस इकोसिस्टम में, with narrow base and broad apex, नीचे से छोटा होगा जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, और ऊपर से चौड़ा होगा।
broad peak apex, right? So this was about pyramid of biomass. Now the next type of pyramid is pyramid of energy, which is also called as यूनिवर्सल पिरामिड और पिरामिड ऑफ प्रोडक्टिविटी. इसी का नाम पिरामिड ऑफ प्रोडक्टिविटी भी होता है जो पिरामिड ऑफ एनर्जी है, क्योंकि ये ट्रू पिरामिड होता है. मतलब ये हमेशा क्या रहेगा? अपराइट, ऑलवेज अपराइट, ऑलवेज अपराइट. ये थंब रूल है, ऑलवेज अपराइट रहेगा. इसमें कैसे रिप्रेजेंट करेंगे आप? इसमें यूनिट क्या होनी चाहिए? इसमें यूनिट एनर्जी की होनी चाहिए. सो किलो जूल पर यूनिट एरिया जनरली हम एक्सप्रेस करते हैं किलो जूल पर यूनिट एरिया. सो the amount of energy present at each trophic level is considered for this type of pyramid. Pyramid of energy give rise best representation of trophic relationship. And it is always upright. जो मैंने आपसे बोला कि हमेशा ही अपराइट रहेगा, कभी भी ये इन्वर्टेड नहीं हो सकता है. जो बायोमास वाले हैं, नंबर वाले हैं, वो इन्वर्टेड हो सकते हैं, उसमें एक्सेप्शन है, कुछ अपवाद है वहां पे, यहाँ पे नहीं है. ये हमेशा ही, इसीलिए इसको यूनिवर्सल पिरामिड भी कहते हैं. दैट्स व्हाई इट इज ऑलवेज कॉल्ड एज यूनिवर्सल पिरामिड, क्योंकि ये हमेशा अपराइट है, अपराइट है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल पिरामिड. तो ये भी ध्यान रखेंगे कि इसको हमेशा यूनिवर्सल पिरामिड कहा जाता है, क्योंकि ये हमेशा अपराइट है, राइट. सो इसको हम थोड़ा सा समझ सकते हैं कैसे, कि मतलब व्हाई इट इज सो. एट एवरी सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल देयर इज अ ह्यूज लॉस ऑफ एनर्जी. मैंने आपको बताया है पहले लिंडमैन के रूल से कि 90% जो लॉस हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ हीट और रेस्पिरेशन. तो ईच नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे हमेशा सिर्फ 10% मिलेगा, एनर्जी पासेस ऑन. Hence, there is a sharp decline in energy level of each successive trophic level as we move from producers to top carnivore. Therefore, pyramid of energy is always upright. इसीलिए ये हमेशा upright रहेगा, क्योंकि एनर्जी ऊपर जाते जाते नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे जाते जाते कम ही होगी, कभी बढ़ेगी नहीं. लेट्स सी द एग्जांपल. कैसे एग्जांपल पिरामिड ऑफ एनर्जी का? जैसे मान लीजिए प्रोड्यूसर है, ठीक है जी. प्रोड्यूसर के पास लेट अस सपोज 1000 किलो जूल ऑफ एनर्जी है. तो इसका 90% तो लॉस हो जाना है. हर्बीवोर के पास खाली कितना जाएगा? इसका 10%, इसका 10%, ठीक है. तो 1000 किलो जूल आपके पास है, इसका मैं अगर 10% निकालूंगा तो इसके पास 100 किलो जूल आ जाएगा. ये कम हुआ इससे. अब नेक्स्ट लेवल पे भी 90% लॉस होगा. 90% इसमें लॉस हो गया, सिर्फ 10% ही आगे जाएगा. 10% आगे जाएगा तो कार्निवोर के पास कितना पहुंचेगा? 10 किलो जूल. अब इसका भी क्या है? 90% लॉस हो जाएगा. टॉप कार्निवोर के पास कितना पहुंचेगा? इसका 10%. सो इसका 10% कितना हो जाएगा आपका? ये अगर आप इसका 10% निकालेंगे तो दिस विल बी ऑलमोस्ट 1 किलो जूल. तो आप देख सकते हैं कि जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो ईच ट्रॉफिक लेवल पे डिक्लाइन कर रहा है. यहाँ पे 1000 किलो जूल था, फिर 100 किलो जूल रह गया, राइट. फिर 100 किलो जूल रह गया, फिर 10 किलो जूल रह गया, फिर 1 किलो जूल रह गया. तो जब आप इसको भी करेंगे ज्वाइन, तो आपको हमेशा ये अपराइट मिलेगा. तो ये यूनिवर्सल पिरामिड है, पिरामिड ऑफ एनर्जी. इट इज ऑलवेज अपराइट. इसको आप ध्यान रखेगा, राइट. So this was for today's lecture, and in the next class we will start that how energy flow in an ecosystem. With that we will talk about. Hope these lectures are helping you guys out in understanding the environmental studies or environmental sciences, and we will try to bring more detailed information in the upcoming lectures for each unit. Thank you guys. Thank you very much.